Hello everyone, welcome back to another post-match live show. I am Yuvraj again with you. With me I have Vedant and you're watching SportsTiger. Vedant, a forgetful performance for Kolkata today. I think they would put up a better show. क्योंकि 195 मुझे लग रहा था Mumbai did well to put that up on the scoreboard. But having the likes of Andre Russell, Owen Morgan in your squad, they came down the order and they were wasted. Want to rectify a lot of things going into the next match, and I don't think they would want to remember this game. They have helped Mumbai break the UAE record of 6 out of 6 losses, and now it's one win out of 7 matches. How do you assess Kolkata's performance today? Well, firstly, very, very happy for Mumbai because that was much needed for them. 6 losses, as you rightly said. Finally, a win in their tank, and they have started on a good note in Abu Dhabi. So, talking about Kolkata, I will be very honest to you. I think there was no plan. There was no plan in place because I was a little surprised with Dinesh Karthik coming at number 3. And then all 4 overseas players did not perform. You see Andre Russell, Owen Morgan, Pat Cummins, Sunil Narine. When you have 4 played the sport across the globe, you expect them to perform. Owen Morgan, he does not perform in Asian conditions. He looks absolutely different to what he is in the English condition. Similarly, Andre Russell was waiting for the ball to come in his areas to hit it for 6. That did not happen, and he looked different player altogether. Even if you will see सुनील नरीन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 145 150 के बीच में आएगी, जैसे ही उससे थोड़ी ऊपर हुई, he wasn't able to handle the new ball. So, not happy. Yeah, as you rightly said, Vedant, you are not happy. I think no one's happy with their performance. Apart from that, I think it honestly looked like they were sending the batsman in who was padded up. कि जो भी padded up है, आप चले जाइए अंदर. It genuinely looked like that. There wasn't a specific batting order they were looking at, because if you require so many runs, the run rate at point of time was plus 11 when Dinesh Karthik and Nitish Rana were batting. Even instead of Nitish Rana, they had a chance to send in Owen Morgan at that time. But still, I'm taking nothing away from the Mumbai bowlers. They also executed to perfection. They nailed the slower short ball. जो छोटी गेंद उन्होंने डाली, स्लोअर बॉल बहुत बार डाली, वो मुझे काफी अच्छा लगा प्लान. एक चीज जो मुझे और अच्छी नहीं लगी वो है शुभमन गिल थोड़ा अच्छा और परफॉर्म कर सकते थे इन कंडीशंस के अंदर. थोड़ी एशिया से मिलती जुलती कंडीशंस हैं और एक स्टार्ट अच्छा प्रोवाइड कर सकते थे अपने टीम को, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए. अपने आप से भी काफी दुखी थे जब वो आउट हुए, और वो एक पुल शॉट की बॉल थी नहीं, जिस तरीके से वो सीधा थमा बैठे कायरन पोलार्ड को, तो वो अपने आप से थोड़ा नाखुश होंगे. सिमिलरली सुनील नरीन, जिस काम के लिए उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजा गया था, वो आज वो नहीं कर पाए. तो एक स्टार्ट जब अच्छी नहीं मिलती, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके पास 11 साढ़े 11 की रन रेट, तो आपको रिक्वायर्ड रन रेट पहले ही हो गई थी. तो आते ही से ही आप बैट्समैन से ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आएंगे और स्टार्ट के अंदर ही छक्के चौके लगना चालू हो जाएंगे. युवराज, ये थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, ये शारजा वाला ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आपने मिस टाइम भी करी तो आपकी बॉल आउट ऑफ द पार्क चली जाएगी. एंड सिमिलरली दैट वाज द केस विद कोलकाता टुडे. एंड विद दिस नोट आई वुड आल्सो वांट to look at their scorecard as well. Nothing actually to be looked if you are a Kolkata fan. Shubman departed for just 7 of 11 deliveries, 1 boundary involved in it, and as I said, Pollard took a very, very easy catch. Sunil Narine was able to contribute just 9 of 10 deliveries. Dinesh Karthik ने 30 जरूर बनाए पर 23 बॉलें खा गए. 5 चौके उसके अंदर इन्वॉल्व है. इससे ये पता चलता है कि कितनी डॉट बॉल्स उनने इस इनिंग्स के अंदर ली. नीतीश राणा ने 24 रन कंट्रीब्यूट करे, 2 चौके 1 छक्का. Owen Morgan, Andre Russell, they were not looking at their best. Owen Morgan 16 रन, युवराज 16 रन 20 गेंदे, एंड 16 में से 10 रन तो आपके बाउंड्री से आए. हाउ अनहैप्पी यू आर? I think first of all, Kolkata really messed up the batting order. They really did. Or Owen Morgan, again, we were expecting so much. Another player who crumbled under pressure. All the overseas players did, especially Pat Cummins and Owen Morgan. He just didn't seem to get hold of the ball. एक उन्होंने छक्का मारा था मिड विकेट के ऊपर, उसके अलावा एक और बाउंड्री लगाई थी. उसके अलावा he was just looking out of sorts.
ऐसा लग रहा था कि ये इंग्लैंड में जो खेलते आ रहे हैं वही वाले ऑयन मॉर्गन उतर गए यूएई की पिचेस पे भी, एंड यू कांट डू दैट। ऑन दी अप खेलते हैं और थोड़ा अपराइट पॉस्चर है इनका, तो इसलिए वहां पे इन्हें मदद मिलती है। जहां पे बाउंस मिलता है इंग्लैंड की पिचेस पे, साउथ अफ्रीका भी देख ले, वहां भी इन्होंने अच्छा खेला है, ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे वहां बाउंस मिलता है, वहां पे थोड़ा अपराइट रहते हैं तो शॉट्स मारने में मदद मिलती है। पर यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा लो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लेग साइड पे स्लॉग स्वीप मारना है, लपेटना है लेग साइड पे, या फिर स्ट्रेट भी हिट करना है, बाउंस थोड़ा कम है यहाँ पे। यू हैव टू स्टे लो एंड ही हैजंट अडैप्टेड टू द कंडीशंस येट, इट लुक लाइक। अच्छा, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है युवराज, अगर आप ये इस स्कोर कार्ड को थोड़ा ढंग से देखें, बिल्कुल ऑपोजिट लग रही हैं दोनों टीम्स, क्योंकि एक तरफ आप कोलकाता का स्कोर कार्ड देखेंगे तो बॉल बहुत ज्यादा कंज्यूम करके और रन बहुत कम है, और जस्ट ऑपोजिट अगर आप मुंबई का स्कोर कार्ड देखेंगे, रोहित शर्मा 80 54 बॉल, सूर्य कुमार यादव 47 28 बॉल, सौरभ तिवारी 21 13 बॉल, तो सबने बॉलें बहुत कम ली हैं और रन बहुत ज्यादा मारे, उसकी वजह से मुंबई ने 195 जड़ दिए 20 ओवर के अंदर। आई थिंक पैट कमिंस से थोड़ा बॉल से तो कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए, पर आई थिंक ही विल बी हैप्पी विद हिज बैटिंग परफॉर्मेंस। 33 ऑफ जस्ट 12 डिलीवरीज एंड 4 मैसिव सिक्सेस एंड 1 बाउंड्री। But Vedant, his main role being with the ball in hand, he would be unhappy. He'd want to rectify a lot of things यहाँ पे. Again, another player who looked like who couldn't adapt to these conditions. देखिए थोड़ा सा शायद expected है, क्योंकि आप इतने समय बाद खेल रहे हैं, especially for the fast bowlers. It takes time to get into the groove, to get into the rhythm. Considering it was Kolkata's first match, I think we can excuse them in this first game. But when they step onto the field next time, I don't think there will be any excuses to put up. Well, absolutely. And with this, I will also want to see Mumbai's bowling card. And if you see, all have contributed except for Krunal Pandya. 2 wickets for Trent Bolt, Pattinson 2, Jasprit Bumrah as well. He will be very, very happy with his today's performance. तो लास्ट ओवर में थोड़े ज़्यादा रन आ गए, पर उससे पहले तो सिर्फ 5 रन 3 ओवर के अंदर इन्हें दिए थे, तो ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी। राहुल चाहर एक बार फिर नजर आए और काफी विकेट कंट्रीब्यूट करने में शामिल रहे। कायरन पोलार्ड 1 विकेट, और कृणाल पांड्या विल नॉट बी हैप्पी विद हिज करंट परफॉर्मेंस। कृणाल पांड्या के साथ काफी टाइम से देखा जा रहा है कि बॉल से जितना कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। रीजन तो मेरे हिसाब से वेदांत यही है कि जो बाकी गेंदबाज हैं उन्हें कराने ही नहीं देते हैं। अगर आप बात करें, जैसे कायरन पोलार्ड आज आए बीच में गेंदबाजी करने, सरप्राइज पैकेज रहे, 3 ओवर में 21 रन देके सिर्फ 1 विकेट, एक पार्ट टाइमर से जो जो काफी कम गेंदबाजी करता है। 2015 में इन्होंने इंडियन T20 लीग में पिछली विकेट ली थी अपनी, और उसके बाद 5 साल के बाद आज विकेट ली है। कृणाल पांड्या समझ नहीं आ रहा है कि बैटिंग में इतना नीचे आते हैं, वहां भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, गेंदबाजी में रोहित शर्मा उनकी तरफ जा नहीं रहे हैं। So is he just playing for just the fielding? Maybe I don't know what is happening, but I think आप एज अ स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं स्क्वाड की। कृणाल पांड्या जो इतना बड़ा नाम है, 8.8 करोड़ का टैग इनके साथ अटैच्ड है, वो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर जरूरत पड़ नहीं रही है, सो it's really a good sign for the whole squad, I think, and no problems out there as such. Well, absolutely, and I think you rightly mentioned काफी डेप्थ है इनके स्क्वाड के अंदर, और उसी की वजह से कृणाल पांड्या का भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला नहीं है, पर ओवरऑल एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जब भी खेलने आते हैं अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, बैट से बॉल से, और इनकी एक इनिंग्स मुझे हमेशा याद आ जाती है जब भी मैं कृणाल पांड्या का नाम सुनता हूँ। 2017 में जो फाइनल में इन्हें पुणे के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी, बिल्कुल रुख ही बदल दिया था, और उस तरह के कुछ खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको भारत के अंदर भी चांस मिला, और मुझे लगता है आने वाले गेम्स के अंदर थोड़ा सा इनको प्रमोट करना चाहिए। अगर करते हैं इवन बॉलिंग एंड बैटिंग के अंदर, तो काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं मुंबई के लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक अगर मेरे हिसाब से 2-3 विकेट्स जल्दी गिर जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर 8 ओवर के नीचे नीचे में 3 विकेट्स गिर जाती हैं, then they wouldn't want to send in Hardik Pandya, because Hardik Pandya always wants to get going from the word go, शुरू से ही मारना चाहते हैं। सो तब मौका बनता है, ये यहीं पे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, दैट फ्लेक्सिबिलिटी कीप्स इन कि आप कृणाल पांड्या को पहले खिला लें,
कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल तभी होता है जब लैटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में विकेट गिरती है, तीसरी या चौथी। उससे पहले आप देखेंगे जब भी जल्दी विकेट गिर जाएगी 3, तो कृणाल पांड्या अंदर आते हुए दिखेंगे। मेरे हिसाब से यही होने वाला है। टीम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक एडिशनल प्लेयर है। आई थिंक ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट एमआई कोर ग्रुप। आज एक और अच्छी बात देखने को मिली युवराज, वो ये थी कि आज डिपेंडेबिलिटी कोई एक प्लेयर पे नहीं थी और एग्जैक्टली सबने एग्जैक्टली कंट्रीब्यूट करा। आज आप देखें एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कैप्टन के द्वारा 80 मारे बैट से और कैप्टनसी बहुत अच्छी करी। उनके अलावा भी जितने प्लेयर हैं, सौरभ तिवारी ने पिछले मैच में परफॉर्म करा, आज वापस थोड़ी अच्छी टच के अंदर दिखे। हार्दिक पांड्या ने 2 बहुत अच्छे छक्के मारे, एक बार दिखा दिया वापस कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के अंदर। सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला एंड इवन बॉलर्स ने सब ने कंट्रीब्यूट करा। ऑलमोस्ट 1 विकेट या 2 विकेट सब ने लिए हैं, तो एक काफी अच्छा साइन एक मुंबई टीम के द्वारा। जी बिल्कुल। आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर एवरी प्लेयर, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट करा। 11 के 11 अगर आप देख लें तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो परफॉर्मेंस से बाहर हो, जो कंट्रीब्यूशन से बाहर हो, एक्सेप्ट आई थिंक कृणाल पांड्या में भी उनको ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, बट आई थिंक दैट्स फाइन। ही इन द कमिंग मैचेस ही विल आल्सो कंट्रीब्यूट। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड साइन फॉर मुंबई, whether it was Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Hardik Pandya, Saurabh Tiwari, Kieron Pollard, everyone stepped in, took their small piece of the pie and delivered a win for Mumbai. Absolutely. And now let's move to the Kolkata side of it, and let's speak about what exactly went wrong for them. If I actually ask you what exactly went wrong for Kolkata, what is the first thing which is actually coming into your mind right now? I don't think it's about what went wrong. I think it's about what actually went right in this squad, because I think everything was going wrong for them Right. from the start of the day. Nothing was working. Even when the first over we saw, it was only first 5 balls that Sandeep Yeah. Warrior bowled well. He considered just one run, conceded just one run, and after that it was absolutely haywire. He gave away a wide, then he gave away a 6 to Rohit Sharma. After that, no one really stepped up to contribute. Again, I think they looked a little rusty. Right. ऐसा लग नहीं रहा था, मतलब ऐसा तो लग रहा था कि 6 महीने बाद स्टेप कर रहे हैं। कई टीम्स जब पहली बार आई, ऐसा लग नहीं रहा था कि दे वर आउट ऑफ टच फ्रॉम द गेम, बट दीज प्लेयर्स लुक्ड लाइक दे वर आउट ऑफ टच। आई थिंक गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम देम, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर डाउन हो गया होगा। अगर आप जैसे चेन्नई हारी 10-15 रन के मार्जिन से, देन योर मोरल डजंट टेक अ हिट। यहाँ पे Yeah. बहुत बड़ी हार मिली है, 49. तो रिकवर कैसे करते हैं ज्यादा जरूरी होगा देखना। And one more thing, Yuvraj, I think it's very good from cricket prospect. 2 maiden overs in 40 overs. One came in Mumbai innings, one came in Kolkata innings. The very, very good sign if you are a cricket fan. And I think let's move to the next segment now because that is best tweet of the game. So, Yuvraj, let me read out that tweet for you. That tweet is from Shivansh Gupta @Shivansh_sports. He says Owen Morgan and Andre Russell coming at 5 and 6 in chase of 196 is beyond me. KKR have well and truly missed the trick here. Required rate is around 15 now. So I think it's a very, very good point by him. Yeah, definitely. I think as we talked earlier also, Vedant, they did miss a trick by not sending Owen Morgan and Andre Russell up the order. Because अगर आपको 195 रन चेस करने हैं, तो आंद्रे रसल और ओवेन मॉर्गन का ही तो आपको फायदा उठाना था, और वो नहीं कर पाई कोलकाता। बिकॉज ओवेन मॉर्गन एंड आंद्रे रसल बोथ आर रियली बिग हिटर्स ऑफ द बॉल, दे कैन प्ले द रोल ऑफ अ पिंच हिटर। और आंद्रे रसल को अगर आप 3 डाउन भी शायद भेज सकते, मेरे हिसाब से नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक दोनों से पहले ही, बिकॉज ओवेन मॉर्गन हैज बीन प्लेइंग एट नंबर 3 फॉर इंग्लैंड इन द लिमिटेड ओवर सेटअप इन T20 ऑफ कोर्स, एट नंबर 3 इन वनडे जो रूट प्लेज फॉर इंग्लैंड, बट T20 में नंबर 3 पे आ रहे हैं जब जो रूट स्क्वाड में नहीं रहे हैं। तो ही हैज दैट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द चेज फ्रॉम दी ऑनसेट ओनली, बिकॉज पहली विकेट उन्होंने काफी जल्दी लूज कर दी थी। ये भी एक पॉइंट मैं शुभमन गिल के बारे में ऐड करना चाहूंगा। ही गॉट अ लिटिल इम्पेशेंट, थोड़ी उन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई वहां पे, थोड़ा सा और सब्र दिखाना चाहिए था। लेकिन वहां विकेट गिरते ही मेरे हिसाब से, क्योंकि नई गेंद थी एंड ओवेन मॉर्गन को आदत है कि जब गेंद बल्ले पे आ रही होती है तब रन बनाते हैं वो, ज्यादा टेंडेंसी रहती है।
तो नई गेंद के अगेंस्ट अगर हम ओवेन मॉर्गन को अंदर आता हुआ देखते तो शायद बेहतर होता उनके लिए। उसके बाद चाहे आप नीतीश राणा को भेज देते, लेकिन 8-9 ओवर जब हो गए थे और तभी रिक्वायर्ड रेट 12 के आसपास पहुंच गया था। आई रिमेंबर 75 balls were left and 150 runs were required. If Andre Russell not then when? नहीं, आपका ये एनालिसिस है, आई डेफिनेटली टेक इन टू अकाउंट, बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है युवराज इसके अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके शुभमन गिल और सुनील नरीन बैटिंग करने आए, उसको बिल्कुल साइड में रख देते हैं एक बार के लिए। नंबर 3 से बात करना चालू करते हैं। अगर आप नंबर 3 और 4 पे दिनेश कार्तिक, चलिए आज नंबर 3 पे आ गए, समझ में आया नहीं आया, पर अगर आप 4 के नीचे नीतीश राणा जैसे प्लेयर को नहीं खिला सकते, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आंद्रे रसल और ओवेन मॉर्गन जल्दी आउट हो जाएं और फिर वो एंड में जाकर जो आंद्रे रसल कर पाते हैं वो करके दिखा दें, तो वो चीज हो नहीं सकती। तो आपको ओवरऑल बैलेंस के हिसाब से देखेंगे तो मेरे को लगता है कि आंद्रे रसल को 3 या 4 पे नहीं आना चाहिए, वो आना तो नंबर 5 पे या नंबर 6 पे ही चाहिए। हाँ, आप शायद ओवेन मॉर्गन को चौथे नंबर पे खिला सकते थे, तीसरे पे राणा खेल सकते थे और पांचवे पे आंद्रे रसल आ सकते थे और फिनिश करने के लिए गेम खुद दिनेश कार्तिक आ सकते थे। ये मेरा जानना है। जी, आई थिंक दैट ओपिनियन इज आल्सो वैलिड फ्रॉम योर साइड। बट अगर वेदांत अपने बेस्ट प्लेयर्स का आप सबसे ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे नीतीश राणा की आपने बात सही की, लोअर डाउन द ऑर्डर शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज इट डज टेक हिज टाइम टू सेटल इन एंड देन गो बिग। बट राइट। आपको शायद ये भी दिमाग में रखना चाहिए था कि शायद डाउन द ऑर्डर उनकी जरूरत ही ना पड़े। मेरे हिसाब से मेरा व्यू ये है, बट आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत हो गई वहां पे बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करने में, चाहे वो आंद्रे रसल का बैटिंग ऑर्डर हो या फिर वो ओवेन मॉर्गन का हो। एक प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा, ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज आया नहीं उनकी तरफ से, निखिल नायक। इनका स्ट्राइक रेट 64.38 है T20 के अंदर। आज चौथा गेम अपना खेल रहे थे। इनका रोल क्या है मुझे जी, आई थिंक इज अ फ्लोटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, बट उनकी टीम में और भी कई फ्लोटर हैं, जैसे दिनेश कार्तिक, वो कहीं भी आ जाते हैं, नीतीश राणा कहीं भी आ जाते हैं। तो इतने सारे फ्लोटर लेके मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। उसके अलावा अगर ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर चेंज करना चाहें, उनके अलावा किसी और को अंदर लाना चाहें, तो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है। मुझे तो लिटरली ये छठे नंबर पे आज खेलने आए, मजाक की बात दूसरी हो गई, पर ये छठे नंबर पे खेलने आए और मेरे को ऐसा लगा कि अगर आप पैट कमिंस के पास नहीं जा रहे हैं, जो T20 के अंदर इतना अच्छा करते हैं, T10 भी इनने खेली है युवराज, आप इनके पास नहीं जा रहे हैं और आप निखिल नायक को उनको उनसे ऊपर भेज रहे हैं, तो वो वाली बात मुझे समझ में आई नहीं। इवन ये बॉलिंग से कंट्रीब्यूट ज्यादा करते नहीं है, तो ओवरऑल इनकी जगह एज ऑफ नाउ टीम में नहीं बनती। मैं अगर होता तो शायद किसी और को खिलाता, पर ये इनके साथ गए। Maybe in the next game they would want to do some changes, because jokes apart, I think overall if we see Kolkata's lineup, it wasn't looking best, though the 11 players were there, but I think the combination of 11 players actually did not turn out well today. I think Vedant, with Nikhil Nayak, there is a trust factor involved. I think because from last season they have retained him. They did play him in a few games, but consistently नहीं खिलाया था। इस बार I think वो trust factor है. They like having him in the side. I think they like his spirit and energy maybe, but वो भी एक एक्सटेंट तक होना चाहिए। अगर प्लेइंग 11 में किसी की जगह नहीं बन रही है, तो आई थिंक उसको जबरदस्ती शायद प्लेइंग 11 में नहीं लाना चाहिए। और फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, इट्स लुकिंग लाइक निखिल नायक की जगह आप एक रिप्लेसमेंट ला सकते हैं स्क्वाड में। Right, and I think if Nikhil Nayak has to play that role, what Sarfaraz Khan actually played for Bangalore a few years back, then he needs to bat in that way, because I did not see the contribution in his first 3 innings and today as well. So I think Kolkata needs to see a lot of things. A new head coach in form of Brendan McCullum, he did pretty well for the Knight Riders in CPL, and he would love to replicate that. And let me tell you one more thing, Yuvraj. Last 15 games for Brendan McCullum were good, because he did not lose even a single game. But now, coming into IPL, things are looking a little different, because top guns are playing in this league. Yes, he's on the other side now. He's in the coaching staff. खेले तो बहुत साल है, but I think ये देखिए, अगर आप ब्रेंडन मैकलम अभी
गेम को छोड़कर आ रहे हैं, तो ये काफी फायदा होगा कि ही स्टिल हैज दैट फ्रेश एक्सपीरियंस. मोस्टली कोचेस जो है 10-12 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेंडन मैकलम सीधा क्रिकेट खेल के सीधा कोचिंग स्टाफ में आए हैं. दो राइट. नो गैप्स इन बिटवीन. सो मे बी ही इज देयर लाइक अ प्लेयर ओनली. शायद प्रैक्टिस भी करते होंगे नेट्स में, मुझे तो लग रहा है प्लेयर्स के साथ थ्रो डाउन्स भी फेंकते होंगे शायद. ही माइट हैव अ बैट समटाइम्स बाय हिमसेल्फ. So I think a good sign for Kolkata having Brendan McCullum in the coaching staff. And one more interesting stat actually coming our way, and that is Mumbai has won 20 games against Kolkata, which is also the most by any team in IPL history. So it's like amazing stat, to be very honest, because 20 games against a team, and we have seen what? We've seen 12 season. This is the 13th season. That means in 25 games, a minimum of 25 games, 20 games have gone in favor of Mumbai. Yes, whenever Rohit Sharma turns up against Kolkata and Mumbai turn up against Kolkata, it's just been one way traffic. Always. ईडन गार्डन्स में देख लें, चाहे वानखेड़े पे देख लें, चाहे आप यूएई में देख लें, इट्स ऑलवेज बीन वन वे ट्रैफिक. एक जो गेम आज वाले वेन्यू पे यूएई में खेली थी 2014 में इन दोनों टीम्स ने, उसमें कोलकाता जीती थी. वही एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी. उसके अलावा मुंबई हैव एब्सोल्युटली डोमिनेटेड अगेंस्ट कोलकाता थ्रू आउट द इयर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, एंड बैड साइंस फॉर कोलकाता. दे शुड हैव डन देयर होमवर्क अगेंस्ट दिस टीम कि वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत नोटेबल चीज है. यू कांट इग्नोर दिस दैट यू हैव लॉस्ट सो मेनी गेम्स अगेंस्ट अ टीम and they've had the same core group throughout the years. So you need to assess the weaknesses and strengths of that core group, because Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Kyron Pollard, and even Quinton de Kock, Krunal Pandya, and so many players have been playing for Mumbai. You need to do your homework, and I think they lagged somewhere there. Well, I think it has been a disappointing end, and if you are a Kolkata fan, then there was not much positives from this game. If you are a Mumbai fan, then definitely you would be happy, because they have been able to break that jinx, and finally they have won a game in UAE. So overall, it has been a good effort, and tomorrow we will be joining you guys back as Bangalore take on Punjab. It should be a cracker of a game. One team just very, very close to win the game, and other actually won, so it should be a very good show. Virat Kohli against KL Rahul, and we will be previewing that in Matchday Live at 4 p.m. So do join us there as well. Till then, it's a goodbye.